Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying inclination of a line, slope of a line, results of two parallel and perpendicular lines, angle between two lines and collinearity of 3 points. Using these topics we will be studying NCERT exercise 10.1. So let us start. So for this straight lines we have to revise class 10 chapter coordinate geometry. So in class 10th we have done distance formula, we have done section formula, midpoint formula, area of the triangle. तो वही हम रिवाइज कर लेते हैं. So बच्चा distance formula is this: if P and Q are these 2 points, then distance is PQ under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? Section formula हमने किया था if there is a line segment PQ when the point R is dividing PQ in m:2n ratio, then x coordinate will be this and the y coordinate will be this. So using this section formula we can find coordinates of point R. Midpoint formula is a particular case of section formula. So in this midpoint, जो ये section formula के according to ratios m:n, midpoint में क्या हो जाता है 1:1. So 1:1 ratio हो जाता है बच्चा. तो ये इसी का particular case है. इसी में अगर m और n को आप 1 ले लोगे तो you will get x is like this and y is like this. So ये है midpoint formula. Area of triangle PQR भी हमने class 10th में किया था. If we are having a triangle PQR and the coordinates are like this, then the area of triangle PQR formula is half modulus x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 whole modulus. Modulus means the answer cannot be negative because it is area. And also if we are getting area as 0, so what does it mean? That means points are collinear. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी क्लास 10 पे, हम काफ़ी यूज़ करते थे. whenever we used to prove that points are collinear, तो हम उनका एरिया फाइंड आउट करते थे एंड दैट शुड बी 0. अगर 0 आ जाता है तो हम क्लेम करते थे कि पॉइंट्स कोलिनियर है. तो ये सब कुछ बच्चा हमने क्लास 10th में किया है. अब हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक पार्ट है. तो ये हमें आना चाहिए और फिर हम अच्छे से इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर को कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पिक करने वाले हैं इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट, inclination of a line. So inclination of a line is basically angle and which is normally represented by theta. So what is the inclination? What is the definition? The definition is the angle made by the line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Is known as inclination of the line. तो अभी इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. So what is the definition? Definition saying that the angle made by the line with the positive direction of x-axis and in anti-clockwise direction is known as the inclination of the line. So what is this? अगर हम एक डायग्राम बनाएं, so say there is a line, ये है x-axis and this is y-axis. So what is the definition? The angle made by the line with the positive direction of x-axis and in the anti-clockwise direction. So say there is a line, तो बच्चा positive direction के साथ anti-clockwise direction में ये angle बन रहा है, तो this is what? Inclination of this line. Inclination of this line. Say there is one more line. There is one more line like this. So its inclination is this. Say one more line like this. So its inclination is this. तो inclination आपको इसी डायरेक्शन से मेजर करना है क्योंकि दे आर सेइंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, राइट? तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें इसी डायरेक्शन से एंगल मेजर करना है और जो यहाँ से एंगल फॉर्म होगा दैट इज नॉन एज इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन. सो यूजिंग दिस डायग्राम आई कैन से इंक्लिनेशन दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. The larger value of this will be 180 degree and the smaller value will be the 0 degree.
0 डिग्री एंड 180 डिग्री को हम इंक्लूड कर रहे हैं, 0 तो इंक्लूड होगा ही होगा, 180 को हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि लाइन के लिए 180 एंड 0 डिग्री सेम ही होगा, बट एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया तो आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग. सो द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन will lie between 0 degree and 180 degree where 0 and 180 both are included. ठीक है, तो ये हो गया बच्चा इंक्लिनेशन. ठीक है, तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन 0 180 के बीच में ही लाई करेगा, 0 180 भी हो सकता है. अब इसी के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस is what is inclination of x axis. inclination का मतलब क्या है कि जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन x axis के साथ एंगल बनाए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो x axis अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री. सो इट इज द इंक्लिनेशन फॉर द x axis 0 डिग्री एंड व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ y axis. y axis कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विद द x axis, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x axis ही है, x axis के साथ ही हमें एंगल लेना होता है. एंड वाई एक्सिस के लिए कितना बनेगा ये 90 डिग्री. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये यूज हो जाता है. वी शुड नो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 डिग्री एंड इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 डिग्री. राइट, तो ये हो गया इंक्लिनेशन. अब हम कर रहे हैं सेकेंड टर्म एंड विच इज स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन. सो नाउ द सेकेंड पॉइंट, ये थे हमारे रिमार्क्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. Slope of a line is normally represented by m. Slope को हम m से ही रिप्रेजेंट करते हैं. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हम m से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा. हायर क्लासेस में अगर कुछ साइन और चेंज होता है तो आपको पता लग जाएगा. स्लोप इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. स्लोप इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. ठीक है ना. व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज ग्रेडियंट, तो वो हम देख लेते हैं. तो फॉर्मूला इज, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, तो इट्स फॉर्मूला इज tan थीटा, डायरेक्टली tan थीटा. थीटा इज व्हाट, द सेम इंक्लिनेशन, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. So whenever we have to find slope of a line, so we should know inclination of the line and then we can use the formula m is equal to tan theta, and using this we can find slope. But you should know that tan 90 degree is not defined, so theta cannot be 90 degree क्योंकि उसमें slope not defined हो जाएगा. and theta जो होता है वो होता है 0 to 180 डिग्री के बीच में, तो ये इसकी डोमेन है. क्लोज लगा रहे हैं हम, 180 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज 0 and 180 बोथ आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो थीटा 90 नहीं होना चाहिए. ये हो गया हमारा स्लोप. नाउ स्लोप का ये तो फॉर्मूला है, डेट इज फाइन, बट स्लोप होता क्या है. तो बच्चा जो हम लाइन को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो लाइन कैसी है. लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन ऐसे हो सकती है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट लाइन्स, राइट. काफ़ी तरह की डिफरेंट लाइन्स हैं. तो जब हम उनको स्टडी करेंगे तो उनके हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि उनके पॉइंट्स क्या हैं, उनके इंटरसेप्ट्स क्या हैं, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कितना एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो कितना बैंड हो रहा है, कितना एंगल बना रहे हैं. तो स्लोप उन्हीं से एक रिलेटेड टर्म है. बेसिकली जो स्लोप प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है कि वो कितना बैंड हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे एक और लाइन बनाता है तो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल बैंड ही नहीं हो रही है. तो इससे रिलेटेड है स्लोप टर्म, राइट. तो मैथ्स में हम कर रहे हैं, एंड मैथ्स में स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड इट्स फॉर्मूला इज tan थीटा. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड स्लोप. नाउ tan आपने किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो tan है उसकी रेंज होती है ऑड रियल नंबर्स, यानी कि जो tan का आंसर आता है, tan 30, tan 60, tan 75, tan 90, आप कोई भी एंगल लेते हैं तो tan का आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन, कैसा भी, इरेशनल, रैशनल, कोई भी आंसर हो सकता है. तो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड वन ऑफ द रिजल्ट इज दिस, दैट स्लोप जो होगा इज अ रियल नंबर. स्लोप इज अ रियल नंबर, यानी कि स्लोप का आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन कैसा भी हो सकता है. ठीक है, तो देयर आर सम रिजल्ट्स. सेकंड इज स्लोप इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी. इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, दैट मीन्स इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ना. तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं लगाना है, और इसका नेगेटिव, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन में कैसा भी आंसर हो सकता है स्लोप का. ठीक है, कितना ही लार्ज, कितना ही स्मॉल, कैसा भी हो सकता है, एंड इट इज़ एन यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है बच्चा, तो ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास. नाउ
there are again some remarks. Third is, what will be slope of x-axis? So what is the formula of slope? Slope का formula है tan theta, and what is theta for x-axis? 0. So I can say slope of x-axis is tan 0 degree because इसके लिए inclination 0 degree होता है, tan 0 degree is 0. So slope of x-axis is 0. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के लिए क्या होता है हमारे पास इंक्लिनेशन 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज tan 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो जो वाई एक्सिस का स्लोप है वो डिफाइंड ही नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है और ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है. इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है. ऑल्सो नॉट डिफाइंड के लिए वी कैन यूज द सिंबल विच मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये मैथमेटिकल सिंबल है और इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट. राइट, इट्स लाइक दिस, ये सिंबल और इसको कट कर दिया, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट और इसका मतलब हो गया डज नॉट एग्जिस्ट. सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट because it is tan 90 degree and which is not defined. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी केसेस हैं. नेक्स्ट इज स्लोप. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? tan 90 डिग्री. राइट, तो बच्चा जो स्लोप है विच फॉर्मूला इज tan थीटा, स्लोप की वैल्यू विल बी पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब क्या होता है? डबल इम्प्लीकेशन, कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा. इसका मतलब होता है बच्चा इफ एंड ओनली इफ, एंड विच इज नॉन एज डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ. तो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी यूज दिस सिंबल, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दैट मीन्स, व्हाट इज दैट मीन? m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कब होगा? जब हमारा थीटा 0 to 90 के बीच में होगा, एंड ऑब्वियसली 0 विल बी इंक्लूडेड. तो अगर थीटा 0 to 90 के बीच में है, दैट इज इंक्लिनेशन, तो इसमें जब आप tan अप्लाई करोगे तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, एंड tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप. तो यानी कि अगर थीटा 0 to 90 के बीच में है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और आई कैन से अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उसका इंक्लिनेशन 0 to 90 होगा. दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंक्लूड कर सकते हैं हम, और राइट से लेफ्ट पे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं. तो इसका मतलब डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट से सेकंड रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हो, सेकंड से फर्स्ट रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हो. दिस इज डबल इम्प्लीकेशन, एक दूसरे को वो इम्प्लाई कर रहे हैं. ठीक है बच्चा, तो इसको अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मान लो वी हैव अ लाइन लाइक दिस, तो इट्स एंगल इज दिस विच इज एक्यूट एंगल विच इज बिटवीन 0 to 90. तो इसका स्लोप पक्का आपका क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है. राइट, सेकेंड केस, if m is less than or equal to 0, then less than or equal to 0, that means negative, that means angle will be greater than 90 and less than or equal to 180 degree. तो वो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. वाई ऑब्ट्यूज? बिकॉज अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो tan का एंगल अगर 90 से ज़्यादा है और tan उस पर अप्लाई किया है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, एंड m इज नथिंग बट tan थीटा. सो tan थीटा अगर नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा. तो फॉर एग्जाम्पल लाइन लाइक दिस, तो इसका जो एंगल है इंक्लिनेशन है दैट इज ग्रेटर देन 90, हेंस इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव. इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव एंड इट्स स्लोप विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स है बच्चा, ये हमें आने चाहिए, हमारे लिए हेल्प करेंगे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट पे. तो ये अभी हमने क्या सीख लिया? स्लोप का फॉर्मूला सीख लिया विच इज tan थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. तो अगर हमें इंक्लिनेशन पता है लाइन का तो उससे हम स्लोप ईजिली निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें इंक्लिनेशन नहीं पता है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? सो दिस वॉज ए पार्ट कि स्लोप ऑफ लाइन हमने कब निकाला है? व्हेन वी आर हैविंग थीटा, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. नाउ बी पार्ट, अगेन वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, बट व्हेन two points are given, which are when 2 points are given which are on the line. If there are 2 points which lie on the line, then, and we know about those 2 points, then how can we find slope of the line? तो वो अभी हम देख लेते हैं. सो बच्चा इसके लिए हमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना होगा. सो से देयर इज अ लाइन, and there is a point P and there is a point Q. This point P is say x2 comma y2 and this point Q is say x1 comma y1.
ठीक है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, एंड वी वांट टू फाइंड इट्स स्लोप. सो अभी इसका इंक्लिनेशन है से अल्फा और यू कैन से थीटा. सो वी नो व्हाट इज स्लोप, m is equal to tan theta. Now see the diagram. I can say this length is y2, right? Can I say if this is theta, this will also theta, and this is P, Q, and say this point is R. So I can say using the diagram, I can say tan theta will be the perpendicular which is PR upon base which is QR. ये आपने 10th क्लास में क्या होगा, tan theta क्या होगा as per the diagram, perpendicular upon base. Now what is perpendicular, यानी कि what is the length of PR? We know this complete length is y2, this complete length is y1. So this length will be PR कितना हो जाएगा बच्चा, PR हो जाएगा आपका y2 minus y1. So PR is y2 minus y1. What about QR length? QR length कितना हो जाएगा, QR length will be x2 minus x1. x2 minus x1. So यहाँ से tan थीटा ये भी आ गया, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं जो लाइन पर लाई कर रहे हैं, x2 comma y2 and the second point is x1 comma y1. So using this formula also we can find slope of the line. ठीक है, तो ये भी एक हमें फॉर्मूला मिल गया. अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हैं जो लाइन पर लाई करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके स्लोप निकाल सकते हैं. तो अभी हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या था, m is equal to tan theta. Now the second formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 if these two points lie on the line. तो दोनों फॉर्मूले काम के हैं और एज पर द इंफॉर्मेशन हमें देखना होगा कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन. नाउ देयर आर सम मोर रिजल्ट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. First result is this: if there are two lines L1 and L2 and the lines are parallel. To see the diagram, y-axis, x-axis. Sorry. It will be x-axis, it will be y-axis. So this is x-axis and there is a y-axis and there are two lines. Line 1 and line 2. So this is L1 and this is L2. So L1 के लिए we are taking M1. Say M1 is the slope of L1 and say the inclination of L1 is alpha, so slope will be tan alpha. Second is M2, slope of L2 and say L2 का inclination है beta, तो this will be tan beta. But since L1 and L2 are parallel, so from here I can say that the angles will be equal, alpha and beta corresponding angles. ये किया होगा आपने 10th में. तो since angles are equal, I can say that now tan alpha will also same as tan beta because angles are equal, तो tan की वैल्यू भी सेम होगी, and tan की वैल्यू सेम है तो m1 will be m2. So what is the conclusion? That whenever two lines are parallel, their slopes will be equal. This is the result, first result. तो अगर हमारे पास कोई दो लाइन है जो कि पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, एंड दिस इज काइंड ऑफ डेरिवेशन, ये एक्सप्लेनेशन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो क्यों इक्वल होंगे. अदरवाइज हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हमें रिजल्ट यूज़ करना है. ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया है. ठीक है बच्चा, अब आते हैं सेकेंड रिजल्ट पे. सो नाउ व्हाट इज द सेकेंड रिजल्ट? सेकेंड रिजल्ट इज कि फर्स्ट रिजल्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा. सेकेंड रिजल्ट, इफ दे आर टू लाइन्स L1 and L2 but the lines are perpendicular. So again पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. So if there are two lines and L1 and L2 lines and these lines are perpendicular, so say this is x-axis, this is y-axis, there is a line L1 and there is a line L2. तो ये है L1 and this is L2 and these are perpendicular lines.
यानी कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स आर 90 डिग्री. So now is 90 degree. So I am taking inclination for L1 as alpha. So ये हमने ले लिया alpha और ये हमने ले लिया beta. So what is M1 here? Slope of L1 and inclination लिया alpha. So क्या आ गया? tan alpha. M2 I am taking slope of L2 and inclination लिया है L2 का beta, so the formula will be tan beta. तो M1 is tan alpha and M2 is tan beta, right? Now see the diagram. If this is 90 degree तो ये भी 90 degree होगा, और अगर ये 90 degree है तो इस triangle से this point is P and this point is Q and this point is R, तो see the triangle PQR, can I say here in triangle PQR I can say that 90 degree plus alpha is equal to beta. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किया होगा आपने ये, तो दिस 90 डिग्री प्लस दिस अल्फा विल बी इक्वल टू दिस एंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ये. सो 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, tan अप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड. सो tan 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा. Now what is tan 90 degree plus alpha? Quadrant behavior. So tan 90 plus alpha आपको पता होगा, it's minus cot alpha and this is equal to tan beta. I can write minus cot alpha as minus 1 by tan alpha. तो हमने इसे tan में कन्वर्ट क्यों किया बच्चा? बिकॉज tan alpha tan beta हमारे पास रिजल्ट है कि tan alpha is m1 and tan beta is m2, तो हम वो यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ गया? नेक्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस 1 बाय m1 इज इक्वल टू m2, और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट m1 into m2 is equal to minus 1. So this is the conclusion. What is the conclusion? That whenever two lines are perpendicular, then the product of their slopes will be minus 1. Whenever two lines are perpendicular, then the product of their slopes will be minus 1. So this is important result. ये भी काफी use होता है. Also I can say if two lines are perpendicular, then the product of their slopes is minus 1, or slope of one line is negative reciprocal slope of another line. यानी कि the slopes of the lines are negative reciprocal of slope of another line of each other, or you can say. तो अगर एक लाइन का हमें स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल if they are perpendicular. ठीक है बच्चा? So that is if two lines are perpendicular, then the product of their slopes will be minus 1. So this is the result. ठीक है. सो दो रिजल्ट कर लिए. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी minus 1. नाउ द थर्ड रिजल्ट इज हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स. हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स? सो पहले डायग्राम. सो इफ देयर आर टू लाइन्स, say this is L1 and this is L2. So say this is x-axis and this is y-axis. This line is L1 and this line is L2. ठीक है. So there are two lines and we want to find angle between these two lines. Say angle between these two lines is 5. Angle 5. तो हमें ये 5 निकालना है. And L1 का inclination we are taking as alpha and L2 का inclination we are taking beta. So slope of line L1, say M1, and that will be tan alpha because alpha is the inclination. Slope of line L2, that will be M2, and that will be tan beta because beta is the inclination of L2. So again see the diagram. If
this point is P, this point is Q, and this point is R. So can I say that in triangle PQR, here in triangle PQR, using angle exterior angle property, if this is phi, this will also phi, and using exterior angle property, I can say that beta plus phi is equal to alpha, or I can say phi is equal to alpha minus beta. So if we apply tan on both sides, we will get tan phi is equal to tan alpha minus beta. And if you know its formula is tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta. And what is tan alpha? Tan alpha is m1 and tan beta is m2. तो वो वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चा, तो क्या आ जाएगा? tan phi is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, and phi is the angle between the lines. तो जब भी हमें एंगल निकालना है between two lines, tan phi, so what will be the formula? m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, और m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. Why? क्योंकि बच्चा m1 m2 यानी कि लाइन 1 लाइन 2 कौन सी है ये तो हमें नहीं पता. हम कोई भी लाइन 1 ले सकते हैं, कोई भी लाइन 2 ले सकते हैं. देयर आर टू लाइंस, तो हम किसी को भी लाइन 1 और किसी को भी लाइन 2 कंसिडर कर सकते हैं. तो फॉर्मूला ये भी बन के आ सकता है, फॉर्मूला ये भी बन के आ सकता है. इसलिए व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट वी विल टेक देयर मॉडुलस यानी कि देयर पॉजिटिव वैल्यू, ताकि हमारे पास जो एंगल निकल के आए वो एक्यूट एंगल निकल के आए. सो एक्यूट एंगल निकल के आए, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताती हूँ. एंड दिस इज द फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइन्स. सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड इफ फाई इज द एंगल एंड m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या था वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू लाइन्स एंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज से 60 डिग्री. तो बच्चा अगर ये 60 डिग्री एंगल है, सो कैन आई से ये वाला एंगल 120 होगा और ये भी इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल है. तो अगर हम मॉडुलस ले लेंगे तो ये छोटा वाला एक्यूट एंगल निकल के आएगा, ऑब्ट्यूज नहीं निकल के आएगा. हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम खुद निकाल लेंगे. तो देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस इज फाई और 180 डिग्री माइनस फाई. तो अगर आपको दूसरा एंगल निकालना है तो आप 180 में से माइनस कर दो, आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा. तो इसलिए मॉडुलस लेते हैं, उससे निकालते हैं और दूसरा एंगल वहां से माइनस करके आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट रिजल्ट, दैट मीन्स द रिजल्ट नंबर 4 इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. सो ये हमने क्लास 10th में भी किया था. वेन एवर वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम उनका एंगल फाइंड कर देते थे, सॉरी एंगल नहीं एरिया फाइंड आउट करते थे, और अगर वो 0 आता है तो डेट मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर है. बट अब हम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यानी कि स्लोप का या इंक्लिनेशन का, इसमें से जो अभी अभी हमने सीखा ये अगर हमें रिजल्ट यूज करना है तो यहाँ से यूज करके हाउ कैन वी प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वो हम सीखने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम. So say this is x-axis and this is y-axis, and there is a line like this, and there are 3 points on this line, the point P, the point Q and the point R. Say point P, Q, R are collinear as per diagram हमें पता है. तो बच्चा diagram because the points are collinear, can I say as per the diagram अगर मुझे line slope निकालना है line L का, तो I can say slope of PQ will be the slope of line L, and also slope of QR will be the slope of the line L. और बिकॉज स्लोप यूनिक होता है लाइन का, जो भी होगा वो यूनिक होगा. अगर किसी लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप 3 है तो 3 ही है, इस लाइन का कोई और स्लोप नहीं हो सकता. और जितनी भी लाइन्स इसके पैरेलल है उन सबका ही स्लोप 3 होगा, बट इस लाइन का तो अकेला स्लोप 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. तो आप पी क्यू को यूज करके निकालो स्लोप, या क्यूआर को स्लोप, क्यूआर पॉइंट्स को यूज करके निकालो स्लोप, स्लोप तो सेम आने वाला है. तो यही कंडीशन हम यूज कर लेते हैं. इसमें पॉइंट क्यू कॉमन भी है, तो अगर पी क्यू का स्लोप और क्यूआर का स्लोप सेम आया तो दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज पॉइंट क्यू इज ऑल्सो कॉमन हियर. ठीक है, सो इफ द स्लोप्स आर इक्वल, डबल इम्प्लीकेशन, पॉइंट्स
PQR are collinear. सो ये हमारे पास रिजल्ट है. डबल इम्प्लीकेशन आपको पता है, दैट मीन्स अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ विल बी सेम एज स्लोप ऑफ QR, एंड इफ वी आर गेटिंग दैट स्लोप ऑफ PQ सेम एज स्लोप ऑफ QR, देन वी कैन क्लेम दैट पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर, राइट. तो बच्चा ये हमने कुछ रिजल्ट्स किए हैं, जितना कंटेंट हमने किया उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट 1 कर सकते हैं. तो पॉइंट 1 स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है. तो हमने सबसे पहले किया है स्लोप, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, एंड इट्स फॉर्मूला इज tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 if we are having points. And theta cannot be 90 degree here because theta अगर 90 हुआ तो it will be not defined. Slope of x-axis is 0, slope of y-axis is not defined, or you can say does not exist. If two lines are parallel, their slopes will be equal. If two lines are perpendicular, the product of their slopes will be -1, or you can say slope of the lines will be negative reciprocal slopes of each other. Angle between two lines, the formula is tan phi is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 whole modulus, and 1 plus m1 m2 cannot be 0 because of domain part. Denominator 0 हो गया तो फिर वो तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, and in that case अगर denominator 0 आ जाता है तो tan phi not defined हो जाएगा. In that case phi will be 90 degree. ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया है. अब इनको यूज करके वी कैन डू 10.1 एक्सरसाइज NCERT. तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए और वो क्वेश्चंस हम जल्दी से कर लेते हैं. सो ये क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए हैं बच्चा, वो है एक तो ये क्वेश्चन, एंड यस दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो ये किया है. सो स्टार्ट करते हैं. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points this and this. So as per the question, what they are saying find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points this and this. So there are 2 points, say P, which is 0, -4, and the point B, which is 8, 0. We have to find slope of the line which passes through the origin and the midpoint of the line segment. So say there is an origin and we have to find slope of this line. If this is the midpoint, say the midpoint is point R. So what will be midpoint बच्चा? Using the midpoint formula, 0 plus 8 by 2 that is 4, -4 plus 0 that is -2. ठीक है. So here it's 1 marker. It's very direct question. Here midpoint PB is point R and which is 4, -2. So as per the question we have to find slope of the line which is passing through the origin and midpoint of these two line segments. यानी कि हमें निकालना है slope of OR if O is the origin. So slope of OR, there's a direct formula whenever we are having 2 points and we want to find slope. So there's a direct formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. So it's up to you, आपको कौन सा second point consider करना है, कौन सा first point consider करना है. So I'm taking R as second point, यानी कि -2 minus 0 upon 4 minus 0. So it will be -1 by 2. So what is the final answer? -1 by 2. It's a 1 marker question. Next question we have taken this question. The question is saying find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise direction. तो सबसे पहले तो बच्चा इसका डायग्राम बनाना है. अगर डायग्राम हमारा सही बन गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजीली. सो दे आर सेइंग वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल मेक हो रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So there is a line which is making 30 degree angle with the positive direction of x-axis but in anti-clockwise direction. So in anti-clockwise direction that means this. So here it is making 30 degree angle and also in anti-clockwise direction. ठीक है, अगर आप ऐसे ले लेंगे तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है.
आपको y एक्सिस से लेना है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, बट क्वेश्चन ने बोला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये वाला भी ले लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला आपको नहीं लेना है। इसका जो सही वाला डायग्राम है वो ये है। तो वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड द एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। तो बच्चा अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, हमें चाहिए इंक्लिनेशन, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अगर ये एंगल मिल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा का। तो वी वांट दिस एंगल, सो व्हाट विल बी दिस एंगल, यू कैन यूज दिस इज 90, so this is also 30 degree, and because this is also 30 degree, this is 90, again exterior angle property, 90 plus 30 is 120, so this angle will be 120 degree। तो हमें यहाँ पे inclination मिल गया है, here inclination that is theta is 120, so what will be slope, the formula is tan theta यानी कि tan 120, and what is tan 120, tan 120 can be written as tan 180 minus 60, and tan 180 minus 60 is minus tan 60, and what is minus tan 60 is minus root 3. So this is the required answer. It is a 1 marker question. ठीक है, नेक्स्ट पे आता है बच्चा। नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। So we want to find angle between the x axis and the line joining these 2 points. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, so diagram there's a point 3 comma minus 1 and 4 comma minus 2, 3 comma minus 1 and 4 comma minus 2. So this is x axis, this is y axis. So 3 comma minus 1 will be somewhere here, 4 comma minus 2 will be somewhere here. So line will be like this. ऐसे करके आपकी लाइन बनेगी, एंड here is the point 3 comma minus 1 and here is the point 4 comma minus 2. Say this point is P and this point is Q. ये point Q हो गया और ये point P हो गया, and we have to find angle between the x axis and the line joining these 2 points. That means we have to find this angle. So here say the first point is P 3 comma minus 1 and the second point is Q which is 4 comma minus 2. So bachcha, if I take this angle as theta, so can I say slope of PQ will be tan theta because theta is the inclination, and also slope of PQ using P and Q coordinates we can find y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला, उससे भी आ जाएगा। सो यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा, एंड वट इज y2 y1 वो पुट कर देते हैं। सो y2 आई एम टेकिंग एज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x2 इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा। सो फ्रॉम हियर tan थीटा इज इक्वल टू minus 1 upon plus 1 यानी कि minus 1, and you know if tan theta is minus 1 then theta is 180 degree minus 45 degree and that is 135 डिग्री, बिकॉज नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आपको ये पता होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, और यू कैन से 180 माइनस थीटा। सो यहाँ पे जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ गया 180 माइनस 45 डेट इज 135 डिग्री। सो ये आ गया हमारा आंसर। बट ऑल्सो इफ दिस इज 135 डिग्री, तो ये जो छोटा वाला एंगल है, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि लाइन का एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, यानी कि 135 माइनस 180 माइनस 135 डेट इज 45 डिग्री ऑल्सो। इंक्लिनेशन वाइज 135 डिग्री ही होगा, बट क्वेश्चन इज नॉट यूजिंग द वर्ड इंक्लिनेशन, दे आर जस्ट सेइंग फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग। तो दोनों ही एंगल वैलिड है, तो 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, दीज टू आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टेकन द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। सो दिस इज समथिंग टू मार्कर एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक हैवी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो व्हाट दे आर सेइंग स्लोप ऑफ अ लाइन is double of slope of another line. So basically there are two lines. So let slope of first line be m
then slope of second line be 2m. Why 2m? Because they are saying slope of line is double of slope of another line. तो अगर एक का slope m है तो सेकंड का क्या होगा, उसका डबल यानी कि 2m. Now what they are saying tangent of the angle between them is 1/3. तो जितना भी उन दोनों लाइन के बीच का एंगल बन रहा है, से उनके बीच में एंगल बन रहा है phi. So tangent मतलब tan. So tangent of the angle between them which is phi. So tan phi is equal to, this is according to question, tan phi is equal to 1/3. ये क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन, where phi is the angle between the lines, where phi is angle between the lines, where phi is angle between the lines. Find the slope of the lines, यानी कि हमें m and 2m इनका आंसर निकालना है. हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये, that tan phi is equal to 1/3. So phi is angle between the lines. We know its formula. What is the formula? Formula says that mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2 is equal to 1/3. So values put कर देते हैं. m2 m1 are the slopes of the line. So first one is m and the second is 2m. So if we put their values, what we will get, m2 I'm taking as 2m, m1 I'm taking as m, upon 1 plus m into 2m, that is 2m square, is equal to 1/3, and that will become m upon 1 plus 2m square. बट देयर इज अ मॉडुलस. तो बच्चा मॉडुलस आपने पहले भी सॉल्व किया होगा. अगर पहले सॉल्व नहीं किया है तो आपको मैं बता देती हूँ, वेन एवर यू हैव टू सॉल्व मॉडुलस यू हैव टू टेक टू केसेस, यू हैव टू टेक टू केसेस. One is +1 and second is -1. So there will be two cases. Case 1 and case 2. So what will be case 1? The case 1 will be m upon 1 plus 2m square is equal to 1/3, and the second will be m upon 1 plus 2m square is equal to -1/3. So now we have to solve these two equations. It will become 3m is equal to 2m square plus 1, and that is 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0. So factorize करना है इसमें, middle term splitting. So it will become 2m square minus 2m minus m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आप फैक्टर्स बनाएंगे, 2m कॉमन लिया, m माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बिकम 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यू विल गेट m as हाफ और m as 1. So this is case 1. Now case 2, same thing. So it will become 2m square minus 2m square minus 1 is equal to 3m, or you can say 2m square plus 3m plus 1 is equal to 0. So 2m square plus 2m plus m plus 1 is equal to 0. और अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो you will get same 2m plus 1 into m plus 1. तो आपके पास यही आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर बच्चा यू विल गेट m as माइनस हाफ और -1. सो वी आर गेटिंग 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m. m के 4 आंसर आए हैं. हमें क्या निकालना है, दोनों लाइन के स्लोप निकालने हैं, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, डबल ऑफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो यानी कि इसका डबल हो जाएगा. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर. जितने भी आपके आंसर्स आए हैं सबके सब वैलिड है, कोई हमारे पास रीजन नहीं है इनको रिजेक्ट करने का. तो जो भी आया है हमारे पास आंसर हमें सब लिखने हैं. सो देयरफॉर स्लोप of lines are, पहला लेते हैं, अगर हाफ है तो सेकंड क्या है इसका डबल, तो इन दैट केस इट विल बिकम 1, राइट. दिस इज केस 1. और अगर 1 है तो इन दैट केस सेकंड लाइन का क्या बन जाएगा, डबल यानी कि 2. और अगर माइनस हाफ है तो इन दैट केस सेकंड लाइन का क्या बन जाएगा, इसका डबल यानी कि -1. और
अगर -1 है तो सेकेंड लाइन का क्या बन जाएगा, इसका डबल यानी कि -2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज 2 मार्क का क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन. कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन ने बोला है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया था, उसी का फॉर्मुला यूज किया है. मॉडुलस है तो आपको 2 केसेस लेने होते हैं, दोनों से सॉल्व करके आपके पास 4 आंसर आए हैं. सेकेंड लाइन का स्लोप इसका डबल था तो उसी का डबल करते करते हमने लिख दिया. तो ये 4 डिफरेंट आंसर्स आए हैं हमारे पास और चारों ही वैलिड है. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग if 3 points this lie on a line, show that this. तो अगर ये तीनों पॉइंट्स, इनके नाम दे देते हैं. लेट द फर्स्ट पॉइंट इज P, H, 0, सेकेंड इज Q, A, B, एंड थर्ड इज R, 0, K. So they are saying they lie on a line. They lie on a line यानी कि they are collinear. So since points P, Q and R are collinear, I can say this implies slope of PQ will be same as slope of QR. ये तो रिजल्ट हमने किया है. अगर ये पॉइंट्स को लीनियर हैं तो कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, स्लोप तो सेम आना चाहिए. तो यही रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं बच्चा. स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, P एंड Q. सो वी नो द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन a2 माइनस a1. ये हो गया PQ से. अगर QR से अगर आप यूज करते हो तो K माइनस B अपॉन 0 माइनस A. तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी विल गेट माइनस A इंटू बी इज इक्वल टू K माइनस B इंटू A माइनस H. सो इट विल बिकम माइनस AB इज इक्वल टू A इंटू K माइनस AB माइनस H इंटू K प्लस H इंटू B. तो ये जो है माइनस ए बी कॉमन है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दिस वी विल गेट 0 is equal to A into K minus H into K plus H into B. We have to prove A by H plus B by K is equal to 1. So A वाली टर्म है यहाँ पर, B वाली भी टर्म है, H या K इनमें से कोई भी न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज द अप्रोच. तो हम क्या करने वाले हैं, H K को राइट में ले जाते हैं. तो H K को राइट में ले गए, A into K plus H into B. Now dividing by HK on both sides. तो HK से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में ना तो H है ना ही K है. तो जब आप डिवाइड करोगे इट विल बिकम 1. यहाँ से डिवाइड किया तो A by H और यहाँ से डिवाइड किया तो B by K. एंड अगर आप देखो तो यही हमें प्रूफ करना है, बस लेफ्ट साइड में लिखा है. सो देयरफॉर A by H प्लस B by K इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो बच्चा जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट 1 ईजिली कर सकते हैं. पॉइंट 1 अपनी कंप्लीट कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट 2 कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. In the next lecture, we will be studying various forms of the equation of a line. That will include horizontal lines, vertical lines, slope point form, 2-point form, slope intercept form and normal form. Using these topics, we will be doing exercise 10.2. Okay, bacha, take care, bye bye.